Let's start the today class. Due to some network problem, class is not going properly. Today we are going to discuss the remaining parameter which is actually used for the manufacture of sweetened condensed milk. Here you can easily see the slide. नहीं आ रहा है सर स्लाइड। आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है सर। Yes, sir. So we have already discussed what should be the quality of milk for accepting it for manufacture of condensed milk. Generally the platform test which is actually conducted for accepting or rejecting the milk for processing of liquid milk. But when you go for sweetened condensed milk, then the milk has to go through the test which I have already discussed. The test are alcohol test, alcohol arginine test, or alcohol index test. So these are the three tests. If milk is actually fit or follow the recommendation whatever laid down in these tests, then the milk is recommended for the manufacture of sweetened condensed milk. So similarly, what is the function of what is the importance of clarifying or filter? We have already discussed, and we are in the condensed milk. We are also discussed the three process of three standardization. One is fat and SNF. Another one is fat and total solid. So all we have already discussed. We have also discussed the forewarming. So different time temperature combination, which are also actually used for the manufacture of condensed milk. And what is the importance of forewarming? We have already discussed different points. So another thing we are actually here to discuss. I have already discussed about the addition of sugar. So if you are not use the sugar at the optimum level or the desired level, so definitely the milk, the condensed milk may get spoiled when stored within short period of time. तो हम लोग को क्या करना है कि आफ्टर एडिशन ऑफ शुगर वी आर ऑप्ट फॉर गो फॉर कंडेंसिंग, है ना। तो हमने जैसा बताया कि हम लोग जो कंडेंसिंग करते हैं वैक्यूम पैन में करते हैं. What is the importance? Why we can go for vacuum pan? Anybody can tell why we can go for use of vacuum pan for condensing of or for evaporating the milk to the desired recommended level of legal standard? बताओ क्यों करते हैं कंडेंसिंग? बताओ. कंडेंसिंग से सर हाँ, वैक्यूम में क्यों करते हैं? प्रीजर्वेशन वैक्यूम देखो सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. What are the advantages of condensing the milk under vacuum? तो नंबर 1 क्या होता है? अगर तुम देखोगे अगर जितना टेम्परेचर दूध को चाहिए कंडेंस होने के लिए तो क्या होगा? देयर मे बी चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ milk or milk and may lead to the cook flavor in the finished product, है ना. एक तो बहुत बड़ा चांस ये है. दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन. अगर हमारा जो अभी हम बताएंगे कि अगर हम टू स्टेज यूज करते हैं तो थर्ड स्टेज से इवोपरेशन यूज करते हैं तो और मल्टीपल इफेक्ट यूज करते हैं तो इकोनॉमी ऑफ हीट. तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन. So cost of condensing, cost of evaporation is significantly reduced when we go for vacuum. Another one is that rapidity of evaporation. मतलब जो हमारा evaporation होगा वो rapid होगा, तुरंत होगा. ये एडवांटेज. तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क अगेंस्ट हीट डैमेज.
क्योंकि अगर हम सीवियर हीट ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन, जैसे 118 से 114 से 118 नो होल्ड देते हैं अभी, तो इतना सीवियर टेम्परेचर पे क्या होता है, जो मिल्क है हमारा, देयर मे बी चांसेस ऑफ न्यूट्रिटिव लॉस तो होता ही है, साथ में उसका उसमें खूब फ्लेवर आने की चांसेस सल्फाइड्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारा प्रोटीन है. So they may lead to the other volatile of liver may be arise when we not condense or evaporate the milk under vacuum. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. दूसरा सबसे बड़ा बात देखते होगे तुम कि रिकंस्ट्रुएशन, जब तुम देखते होगे टी या कॉफी, है ना, जब डेयरी व्हाइटनर जो तुम पीते हो, डेयरी व्हाइटनर किस लिए होता है, कॉफी और चाय में यूज करने के लिए. तो उसको जैसे ही मिलाते हो पानी में, क्या होता है, हल्का सा गर्म हल्का ड्यूक वाटर में हम जैसे ही उसको मिलाते हैं, मान लो टेम्परेचर 50-60 है, तो दे आर इंस्टेंटली मतलब तुरंत घुल जाता है ना. और अगर तुम हंसो, हाँ, और तुरंत घुल जाता है. तो वैक्यूम के अंदर करने से क्या होता है, आसानी से रिकंस्टिट्यूट हो जाता है इनटू ओरिजिनल मिल्क, है ना. इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी, सपोज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दो बोथ आर वर्किंग, they have no time to collect milk from the milker or from the other sources. तो वो क्या करते हैं, कंडेंस मिल्क रखते हैं. और बिफोर देखो, अब इतना लोग अभी बीच में ज्वाइन कर रहा है, हाँ, तो इसमें क्या होता है हमारा, है ना, कंडेंस मिल्क. हाँ, कंडेंस मिल्क हमारा जो है क्या होता है कि रैपिडिटी ऑफ, तो हमारा बहुत सारे एडवांटेज, इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन हो गया. दूसरा एडवांटेज हुआ रैपिडिटी ऑफ इवोपरेशन. नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द हीट डैमेज, और आवर फिनिश प्रोडक्ट मस्ट मे बी फ्री फ्रॉम कुक फ्लेवर और एनी क्या कहता है, अनडिजायरेबल फ्लेवर. नेक्स्ट इज readily constituted into original milk. So these are the beauties of when we condensing the milk under vacuum pan. तो इस तरह से हम लोग, जैसे अब तुम समझ सकते हो, और भी इसको हम लोग जो आगे जो करते हैं, कंडेंसिंग जो करते हैं, उसको हम लोग करते हैं 3 इफेक्ट, 2 स्टेज, 3 स्टेज और मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर में. I think it will be discussed in dairy engineering classes, but just for giving you more clear picture, here you can see that in traditional method, है ना, evaporation, here you see evaporation, है ना, evaporation. So here we are using multiple effect evaporator. तो जितना नंबर ऑफ ज्यादा हमारा, है ना, कैलेंड्रिया होगा, जिसको हम लोग इवोपरेटर, जिसमें हम लोग कंडेंसिंग करेंगे, उसको कैलेंड्रिया भी कहते हैं, तो उतना ज्यादा हीट इकोनॉमी होगा. इससे समझ सकते हो, अगर जनरली जो है 1 किलो वाटर को इवोपरेट करने के लिए क्या है, 1 किलो पानी को इवोपरेट करने के लिए, दूध से 1 किलो पानी इवोपरेट करने के लिए हमको 1.2 kg स्टीम चाहिए. ठीक है, अगर हम एक इफेक्ट यूज करेंगे. अगर डबल इफेक्ट यूज करेंगे तो जो स्टीम रिक्वायरमेंट है जस्ट हाफ हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 0.6 kg. उसी तरह से जब हम ट्रिपल इफेक्ट यूज करेंगे तो हमारा हीट का रिक्वायरमेंट 0.4 हो जाएगा. उसी तरह से हमारा, अगर हम 4 इफेक्ट यूज करेंगे तो हमारा जो कंडेंसिंग होगा, उसका जो हीट एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होगा वो 0.3 kg हो जाएगा. तो nowadays most of the dairy industry are actually using more than 5, even 7 so क्या कहता है, इवोपरेटर, है ना. उसमें फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट, फोर्थ इफेक्ट, फिफ्थ, सिक्स, 7 इफेक्ट तक यूज होता है. बट इन बिहार we are one at Nalanda Dairy project, and another one is Barauni and this one Muzaffarpur Dairy are opting 7 effect evaporator. तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा क्या, जो कंडेंसिंग का जो हीट जो लॉस है वो हमारा बच रहा है. तो इसलिए क्या है कि जो हमारा किसी भी प्रोडक्ट को, अगर हमारा प्रोडक्ट अगर वो कॉस्टली बिकेगा तो हमारा क्या है, वो
टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो इसी वजह से हम लोग इंडस्ट्री में उसको कूलिंग 3 इफेक्ट इवेपोरेटर यूज करते हैं। तो अगर तुम्हें कहा जाए कि कैसे, जैसे मॉडर्न ये है ना मॉडर्न प्रोसेस, हियर यू कैन सी दैट मॉडर्न प्रोसेस। तो इन मॉडर्न प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग ऑफ मिल्क वी आर यूजिंग, है ना, वी आर यूजिंग मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्री हीट होता है मिल्क, उसमें मिल्क प्री हीट करते हैं, मिल्क इज हीटेड टू 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मिल्क इज फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क इज हीटेड to 90 to 95 degree centigrade, then immediate the milk is sent to the first effect evaporator, है ना। तो फर्स्ट इफेक्ट इवेपोरेटर में हमारा कितना प्रेशर होता है स्टीम का, 0.6 से 0.7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द corresponding temperature of first effect is 85 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से अगर हम, है ना, फर्स्ट इफेक्ट मिल्क टेम्परेचर अगर की बात करें, फर्स्ट इफेक्ट मिल्क टेम्परेचर में, तो सोच रहे हो कैसे, वैक्यूम जो है क्या हो रहा है, वैक्यूम इज इंक्रीजिंग, है ना, वैक्यूम इज इंक्रीजिंग। हाँ, तो मान लो पहला इफेक्ट में हमारा वैक्यूम था कितना, 46 से 52 सेंटीमीटर Hg वैक्यूम है अगर मान लो पहला इफेक्ट में। तो दूसरा इफेक्ट में हमारा वैक्यूम कितना हो रहा है, 56 से 61 तक। इसको अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 560 टू 610 होगा, है ना। उसी तरह से अगर थर्ड इफेक्ट में हम जाएंगे तो हमारा वैक्यूम क्या होगा, 66 टू 80 सेंटीमीटर Hg वैक्यूम होगा। मतलब हियर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट, है ना, द वैक्यूम इज इंक्रीजिंग, है ना, सब्सिक्वेंटली, बट द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। तो पहला वाला में अगर हमारा वैक्यूम ज्यादा है, वैक्यूम कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, दूसरे वाला में क्या होगा, वैक्यूम ज्यादा है तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। मतलब ये समझने की चीज है कि जब हम वैक्यूम करते हैं तो क्या है, मान लो रियल टेम्परेचर दूध, मान लो इफ मिल्क इज बॉइल एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें कितना होता है टेम्परेचर, 760 mm Hg। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो दूध हम बॉइल करते हैं तो उसमें 760 mm Hg प्रेशर होता है। लेकिन वही अगर हम वैक्यूम में अगर यूज करेंगे तो वो 70 के 72 के आसपास ही बॉइल करेगा। सपोज यू मेंटेन द टेम्परेचर, और सो यू आर मेंटेन द वैक्यूम, suppose you maintain the vacuum at 60 to 52 सेंटीमीटर Hg, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो हमारा है 75 डिग्री तुरंत आ जाता है, उसमें आ जाएगा, उतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा। सोच लो कितना के बराबर है वो, 100 के बराबर है, 95 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि बाय एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इवेपोरेटर वी आर एक्चुअली एबल टू condense the milk at a very low level of, with very low input, that is input is here is steam. So we can able to reduce the cost of condensing, and at the same time, because this condensing unit, because this evaporator, this condensing unit is subsequently used for powder making. When we convert the powder either for WMP or SMP, so we are first of all, before going to the drying unit, the milk must be condensed at a certain total solid level, to get the desired powder characteristics. तो इस तरह से हम लोग जो है कंडेंसिंग में, जो मॉडर्न प्लांट है उसमें हम लोग जो है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर यूज करते हैं। तो अब इसके बाद हमारा तुम देख सकते हो कि ये जो हमारा शुगर हो गया, कंडेंसिंग हो गया, और कंडेंसिंग के बाद हमारा कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। तो कैसे, इफ यू आर नॉट properly adopt the cooling and crystallization process, there may be definitely one of the major defect in condensed milk, that is sandiness. So sandiness must definitely arise when we not control technically the cooling and crystallization. So how you can control? So after condensing of milk, either from vacuum pan, or from double effect evaporator or triple effect evaporator, or from 7 effect evaporator, है ना, तो milk is actually just
came from the either of these units, this section. So milk is discharged from vacuum pan to another section. वहां पे क्या करेंगे? You must go immediate cooling to milk to 30 degree centigrade, 30 to 31 degree centigrade. Immediate cooling of that. अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? There may be chances of, जानते हो लैक्टोज कितने फॉर्म में पाया जाता है? अल्फा और बीटा, दोनों फॉर्म में हमारा बीटा लैक्टोज और अल्फा लैक्टोज पाया जाता है दोनों स्वीटेंड कंडेंस मिल्क में। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा? सैंडीनेस जो जब हम प्रोसेसिंग करेंगे और जो हमारा जो क्रिस्टल्स, जो हमारा साइज स्मूथनेस आएगा स्वीटेंड कंडेंस मिल्क का, जब हमारा शुगर क्रिस्टल जो हमारा लैक्टोज क्रिस्टल है उसका साइज 10 माइक्रोन से कम रहेगा। कितना? या तो 10 माइक्रोन, हाँ 10 माइक्रोन से उसका साइज अगर कम होगा तभी हमारा जो है स्मूथनेस रहेगा। यू कैन नॉट परसीव एनी सैंडीनेस डिफेक्ट इन द स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। जैसे आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम में कभी कभी जब तुम खाते हो तो देखते हो सैंडीनेस जैसा आता है, बालू बालू जैसा। तो द सेम डिफेक्ट हियर अराइव इफ यू आर नॉट properly adopting the cooling and crystallization process. So how we can actually go for cooling and crystallization? So इसमें हम इसको कहते हैं force crystallization method। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लैक्टोज होता है जिसकी साइज 10 माइक्रोन से कम है, या उसको हम लोग कह सकते हैं 200 मेस साइज है, उसका शार्प क्रिस्टल, उसको अगर हम यूज करते हैं तो what should be the microbial quality of that lactose? तो उसमें क्या होना चाहिए? जो टोटल प्लेट काउंट जो होना चाहिए किसी भी कीमत पे 10 से 15 जो सेल फॉर्मिंग यूनिट है पर ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? जो हम लैक्टोज यूज करेंगे, फाइन लैक्टोज। दूसरा नंबर 2 क्या है? और उसके बाद क्या है कि देयर आफ्टर जो हम लैक्टोज यूज करेंगे तो जो सीड लैक्टोज को हम लोग क्या करेंगे? स्टेरिलाइज करेंगे। कितना पे? 130 से 131 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 to 2 आवर कंप्लीटली स्टेरिलाइज करेंगे लैक्टोज को। सो दैट one major defect actually also comes into the sweetened condensed milk is thickening. तो जो bacterial is thickening, जो bacterial is thickening है, that is actually came from the this type of lapses done in the method of manufacture। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा लैक्टोज है उसको हम किस रेट से डालेंगे, क्यों डाल रहे हैं? अगर हम जो क्या होता है जैसे ही तुम कूल करोगे तो क्या होता है सुपर क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन में क्या होता है? बड़ा बड़ा क्रिस्टल बनने लगता है। तो क्रिस्टल के साइज को कम करने के लिए क्या करते हैं? फोर्स क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सीडिंग करते हैं। सीडिंग मींस Here seeding means just addition of lactose crystal to the sweetened condensed milk। हम लोग है सो क्या करते हैं इसमें? लैक्टोज का पाउडर फॉर्म में जिसका साइज 10 माइक्रोन से नीचे है उसको है सो हम लोग है सो ऐड करते हैं। What should be the amount? They are actually uses at the rate of 0.1% to 0.3% of the total लैक्टोज, है ना। और उसको हम लोग इसको ग्राम में भी बता सकते हैं ऐसे कि 375 से 400 ग्राम पर 1000 लीटर ऑफ लिक्विड मिल्क में हम लोग यूज कर सकते हैं, या 0.01% ऑफ कंडेंस मिल्क। जितना हमारा कंडेंस मिल्क उसका 0.1 से 0.3% है सो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम ऐड करते हैं तो ड्यूरिंग कूलिंग, है ना, तो क्रिस्टल का साइज जो होगा वो नंबर ऑफ साइज जो क्या होगा बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ क्रिस्टल का साइज बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? परसीव जो होगा वी कैन गेट स्मूथनेस इन द प्रोडक्ट। हम इसमें बता सकते हैं जो क्रिस्टल जो बनता है तो उसमें लैक्टोज का 3 फॉर्म होता है। एक होता है अल्फा लैक्टोज हाइड्रेट, दूसरा होता है अल्फा लैक्टोज एनहाइड्रेट, और तीसरा होता है बीटा लैक्टोज एनहाइड्रेट। ये तीनों होता है। और जो सॉल्विटी है लैक्टोज का
वो रूम टेम्परेचर पे बहुत ही माने प्योर वाटर के अंदर बहुत ही कम होता है। तो इसी वजह से हम लोग उसको सीडिंग करते हैं। सीडिंग मीन्स बताया मैंने, जस्ट इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस एडिशन ऑफ, है ना, पाउडर लैक्टोज इनटू द स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। उसका अमाउंट पता चल गया कि कितना डालते हैं और डालने का पर्पस क्या है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारा, एक चीज बता रहे हैं, अगर हमारा देखो कि स्वीटेंड कंडेंस मिल्क में अगर हमारा जो क्रिस्टल साइज है, अगर हमारा 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर 4 लाख का अगर आता है तो वो एक्सीलेंट स्वीटेंड कंडेंस मिल्क का टेक्सचर होगा, मतलब उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रिस्टल साइज अगर 4 लाख के आसपास है तो बहुत अच्छा है। और हमारा जो है, जब सैंडीनेस डिफेक्ट किसमें फील होगा, जब हमारा जो है ना 50,000 से नीचे जैसी होगा, 50,000 क्रिस्टल पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना। तो ये याद करने की चीज है कि जितना नंबर ऑफ क्रिस्टल ज्यादा होगा, द स्मूथनेस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हायर। So you have to keep in mind that the number of crystal may be increased. We can similarly able to control the lactose crystallization in the sweetened condensed milk, and we are able to make a good quality sweetened condensed milk. तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जैसी सीडिंग की है उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही तुमने लैक्टोज का फाइन क्रिस्टल डाला जिसका साइज लेस देन 10 माइक्रोन है, जैसे डाला तो क्या उसको क्या करना है, विगरस स्टीरिंग करना है। विगरस स्टीरिंग करना है कितना देर तक, ऑलमोस्ट 1 आवर, सो दैट क्या है कि द एवरी पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क एंड ऑल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक ए क्रिस्टल। तो क्रिस्टल, नंबर ऑफ क्रिस्टल का साइज जब हमारा 4 लाख से ज्यादा हो जाएगा पर, है ना, पर क्यूबिक सेंटीमीटर mm, तो हमारा जो स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क होगा वो एक्सीलेंट क्वालिटी का होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा के बाद स्लो स्टीरिंग और कूलिंग करने के बाद, ये कूलिंग करिए, कूलिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर जो है 15 डिग्री के आसपास ले जाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कूल करके, है ना, ये देखो पैकेजिंग करना है ना, उसके बाद कूल करके उसको पैकेजिंग करना है ना। और पैकेजिंग करने के बाद जो भी लेवल तुमको लगाना है, स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क में जो स्पेसिफिकेशन होता है ऑलरेडी जानते हो तुम कि 40% से शुगर कम नहीं होना चाहिए, 26%, 31% से टोटल सॉल्ट कम नहीं होना चाहिए, 26% से कम फैट नहीं होना, जो भी चीज है एवरीथिंग विल बी mentioned on the label, or then the product is stored under chilled condition, that is cold condition, so that the age thickening defect or fat separation defect we will discuss later, these may be checked. तो इस तरह से हम लोग जो है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके इसमें ये डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। और देखो ये डिफरेंट फॉर्म्स में तुम देखोगे बाजार में कितने तरह के पैकेजिंग मटेरियल में ये उपलब्ध है। इसमें से हम समझते हैं कि जो नेस्ले का और ब्रिटानिया का भी मिल्क मेड आता थी, अमूल का भी आता है मिल्क मेड, आता है ना, तुम लोग में से कोई इसी ने यूज किया है मिल्क मेड? जनरली अमूल का मिल्क मेड जो देखोगे उसको मिठाई बनाने में लोग यूज करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह these are the different packaging materials, all have certain advantage or disadvantage. You will get more clear when we study the packaging of dairy product. So here you can see the milk is kept under Tetra Pak. Here the shelf life will be definitely more than 6 months. When you keep the product under Tetra condition, Tetra packing, then definitely here you can also keep in this. Nestle is also producing this type of. Who is noising?
So these are the different, here we can get also canned. So these are the some advantage and disadvantage. So we will discuss in the next class. These are the different one of the condensing unit which I have discussed, that the multiple effect evaporator. है ना? So milk is actually, so first of all milk is preheated, then after preheating they are actually the transfer into the first effect evaporator. Here the vacuum is maintained 46 to 52 mmHg. उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट इवेपोरेटर में हमारा क्या होता है, वैक्यूम इंक्रीज कर जाता है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है. फिर थर्ड में हमारा वैक्यूम बढ़ जाता है 660 से 600 से 720 तक हो जाता है सेंटीमीटर एसजी. तो इस तरह से बढ़ते जाता है हमारा वैक्यूम और दूध का बॉइलिंग पॉइंट कमते जाता है. तो बॉइलिंग पॉइंट कमते जाता है, क्यों कमाते हैं हम लोग? सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर मिल्क फ्रॉम द हीट डैमेज, और टू चेक द कुक फ्लेवर, to check the age thickening, to check the reconstitution, to proper reconstitution of the milk. These are the advantage economy of operation. So these are the advantage. As soon as the college is open, we will definitely visit the condensing unit or powder unit either at Muzaffarpur Dairy Project or Nalanda Dairy Project. So after opening of college, when we see the plant, you will get more picture. And during the visit of your plant, you will get more clear picture or more clear understanding about the condensing or drying unit of dairy industry. तो और कोई किसी तरह का क्वेश्चन है किसी का? है कोई क्वेश्चन? नो सर. बताओ. हाँ, एक चीज और है, तुम लोग ने असाइनमेंट, हेलो सर. सर हेलो. हाँ बताओ. देखो, you first of all, you I have already sent you the specification laid down by the different legal agency, either FSSI or BIS or Codex Inventory Commission. I have already sent on your WhatsApp, so you can definitely go each and every aspect of sweetened condensed milk and evaporated milk. उसको पूरा अच्छा से देख लेना है. उसके बाद जो हमने स्टेटस एंड स्कोप ऑफ कंडेंस मिल्क, उस पे तुम लोग को एक एक असाइनमेंट पहले इसको जमा करना है. ठीक है ना सर? और जो हमने बताया कि स्वीटन कंडेंस मिल्क में जो हमें स्टैंडर्डाइज करना है, बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट, योर मेन पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनी डेयरी प्रोडक्ट, हाउ यू विल गेट यूनिफॉर्म क्वालिटी until unless you not standardize the process. तो तुम्हें स्टैंडर्डाइजेशन का जो कंडेंस मिल्क का जो स्टैंडर्डाइजेशन का न्यूमेरिकल दिया, उसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क. और if you have any query, because I have solved the paper in my copy and sent to you, so you can go each and every step. Then if you are not understanding, then definitely I will have you any query now? Prasanjit, please open your video. How many person attending the class? 15 are attending, but only one video is on, because I have to make attendance of every student. It is made compulsory that attendance may be submitted every month. So I am not responsible if you are not attending, or because when video is not open, then how I also understand. Or when you on the video, my concentration in teaching is definitely improved. I am also taking class with more sincerity, because when you taking interest, then it is my responsibility that I can take the
or if you have any query, I will definitely try to satisfy you. तो इसी तरह का क्वेरी है इसमें तो बोलो. For now, because only 2 minutes, Yes, sir. only 2 minutes is left. Otherwise, I will start another topic. Because 40 minutes is, duration is given by Zoom, so only 2 minutes is left. So if you have any query, you can ask, no doubt. Shivam, have you any query? I will arrange another discussion class in which I will ask different question from what I have teach you. तो अगर किसी तरह का क्वेरी है तो यू कैन आस्क. अच्छा, एक चीज और हम बताना चाहेंगे. हाँ, जो हम कंडेंसिंग करते हैं, जो हमारे आफ्टर हमने जो कंडेंसिंग किया, तो हाउ यू विल चेक. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉम्बे रीडिंग जो है डेयरी इंडस्ट्री में बॉम्बे रीडिंग लेते हैं, जो कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है सो बताता है स्वीटन कंडेंस मिल्क का. I will take a separate class for that, the physico-chemical aspect of condensed milk. तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पिक्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, हाइड्रोमीटर से देखते हैं, रिफ्लेक्टोमीटर से देखते हैं और विस्कोमीटर से देखते हैं. तो these are the different tests which is actually conducted at dairy industry for knowing the concentration of the total solid in the स्वीटन कंडेंस मिल्क. देखते हैं ना. तो बॉम्बे रीडिंग एक होता है, जाओगे प्लांट में तो कहेगा बॉम्बे रीडिंग है ना. तो बॉम्बे रीडिंग और इसके अलावा हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम निकालते हैं वो कितने पे निकालते हैं, 16 डिग्री पे, है ना. स्पेसिफिक कंडेंस मिल्क का 16 डिग्री पे निकालते हैं. और उसका एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हें, जिसको हम लोग जैसे क्या है, जितना यूनिट है उसको 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज फैट बटे स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, प्लस परसेंटेज मिल्क सॉलिड नॉट फैट बटे स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस परसेंटेज शुगर बटे 1.6 प्लस परसेंटेज वाटर. तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी स्वीटेड कंडेंस मिल्क का निकालते हैं. तो ये आज का हुआ. बॉम्बे रीडिंग में कैसे निकालते हैं, बॉम्बे रीडिंग भी हम लोग 16 डिग्री पे करते हैं. और उसमें भी क्या करते हैं, बॉम्बे रीडिंग को हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी